let's tell us about the fundamental unit of life, means cell. The cell is the basic and fundamental unit of life, means that the cell is the basic needs of for our body. Let's tell you that cell group of cell is make tissue, and group of tissue make organ, and group of organ make organ system, and the group of organ system make the organism, ठीक है, okay. And one things I was to tell you that um, all the things and all the living anything that that is made up of cells, but there is an exception. The virus is not made up of cell, okay. And let's talk about the discovery of cell. Discovery of cell was in 1665 by a scientist Robert Hooke. He go to the morning walking. So he saw a tree. Its tree name is oak tree. He taken the cork of that plant. Cork is basically non-living things, non-living part of the plant. He has taken that, and he has made one self-made microscope, and in which he saw that the cork was placed in the microscope, and he saw that there is a small structural type of house, means that the cell, so he a small component like cell, like a honeycomb like structure, so he called them as a cell. Cell is a Latin word which means small rooms, okay. This is all about discovery of cell. And he discovered the non-living cell. This cork was a non-living, so it is also a non-living cell. He discovered in 1665 by Robert Hooke. And after one more scientist came, Leeuwenhoek. He came in 1674, in which he discovered a living cell of Spirogyra. It is a green algae, okay. It is a green algae. Mm, he was There was only one story. He was going to the morning walking, he was also, and he saw beds in these are present in in lake. So he has taken that, and he has making the self-made microscope, and after he saw there is a movement in the cell. So he saw the living cell. And after one more scientist has came, his name is uh, Robert. He came Robert Brown, okay. Robert Brown. Yes, came on. He discovered a nucleus in 1831. Okay. Then after one Sleeden and Swan. This is also known as, they were given the cell theory, means that all the plants and animals are composed of cell, and cell is the basic unit of life. Sleeden and Swan. Sleeden was botanist, and Swan was zoologist. You can learn also Sleeden and Swan. Swan, it is a bird name, and so he was zoologist. It is related to animal, so you can learn. Okay, then after Sleeden and Swan given the cell theory, and after in 1855 Alfred Virchow came, and he has given a theory in which all the cells are came from pre-existing cell, means that all the cells were came. And he say uh, omnis cellula is cellula, which means all cells came from pre-existing cell, okay. In 1855 he has said. And this after, then one more scientist came. His name was Purkinje.
Purkinje discovered a protoplasm. Protoplasm I will tell after, but I will tell something. Protoplasm was a liquid-like structure present in the cell. Okay, and you can learn also P से Purkinje, P से protoplasm. Okay, and discovery of the cell, and after we learn cell theory, Rudolf, and after we learn about on the basis on the cell. Okay, on the basis of number there are two types of cell, unicellular and multicellular. Unicellular made up of single cell. Uni means one. Uni means one, made up of only one type of cell, and multicellular means made up of more than one cell. Okay, multicellular made up of one cell, and unicellular is made up of single cell. And this is the examples of unicellular means one only, they are made up of only single type of cell. This is bacteria and fungi, these are made up of only one types of cell. And after unicellular and multicellulars is animals, humans, plants, and all the things, okay, that you can see. Okay, this is multicellular. Where on cells are not in, you have seen the cells are not in only a circle way. Cells are very ways in shapes and size also. This is a fat cell. I will show you how fat cell was. This is fat cell, and after this is sperm, this is ovum, this is fat cell, and this is the muscle cell, this is in spindle shape. These are many types of cell shapes. I think you have seen this, the shapes of the cells. And after I will tell one important things, that the bacteria, the single type of cell. But how it will take their food, their type of liquid, and the after that was end, there was a structures at the end, there was a one pseudopodia. It is for the capturing food. Okay, so it will move there is here, and it will like a slime, you know, the slime, this is split all around it. So this is cell, and slowly it covered the food. Okay, like this. And you know, amoeba change their shapes, and also known as on also know that and amoeba and WBC change their shape. In body, WBC change their shape, and amoeba change their shape. एंड सम इम्पॉर्टेंस थिंग्स, सेल की साइज जो होती है 1 माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर होती है 10⁻⁻⁻6 मीटर होती है। ठीक है, अब आइए इम्पॉर्टेंट थिंग्स को जान लेते हैं। जो लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट की बात करूँ लार्जेस्ट वर्ड में, तो वो होता है आपका ऑस्ट्रिच का एग। फिर जो स्मॉलेस्ट क्या होता है, माइकोप्लाज्मिक होता है, उसका होता है। फिर उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा सेल इन ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा क्या होता है, न्यूरॉन सेल जो ब्रेन में होते हैं। फिर उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल मतलब बड़ा सेल, ये होता है ओवम जो होता है फीमेल गैमाइट, उसका सबसे बड़ा होता है। और फिर जो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी जो होता है वो आपका होता है स्पर्म होता है, वो जो मेल गैमाइट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, एन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, सारे सेल में ये पाया गया है, कोई भी सेल हो, किसी का भी सेल हो, उसमें आपका मेनली 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, ये तो मतलब होते ही हैं। एक आपका होता है DNA, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म मीन्स, एंड दिस इज in nucleus there is DNA present, and nucleus, okay, nucleus and the liquid like structure, I will tell what is cytoplasm and cytoplasm, and one there is plasma membrane. Okay, plasma membrane, it is present. Okay, let's see next. And this is also
You think what is cytoplasm? Cytoplasm, jelly-like substance present are enclosed within plasma membrane. This is cell, and in the all around the cell, the liquid like jelly means liquid like structures are present in the cell, in the cover of the plasma membrane. Okay, and cyto and after this we have to start our cell wall. Cell wall is a non-living and it is dead part of the cell wall. It is dead part of cell. And one things you also know, that the cell wall is not present in animal cell is not means there is only in animals. In we are also in animals, so in our body, in our cell, there is no cell wall, and they are rigid in structures, and it make form outer covering of plasma membrane. Okay, and provide shape to the cell, and it gives shapes to the cell. So it is because it is rigid, so then it will give the shape to the cell, and it protects cell from mechanical damage and infections. Okay, oh, it protect also from any foreign virus bacteria, so not came, that's why. And it's provide barrier to uh, foreign molecules means it doesn't came, मतलब बैरियर प्रोवाइड करता है, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल्स है अंदर आने की चाह रहा है उसे नहीं आने देता है, उसको मतलब जो कंडीशन होता है उसी में आने देता है। और ये देखो जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो आपका सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। और जो फंगी के जो सेल होते हैं, जो फंगी के सेल होते हैं वो बनते होते हैं कैटीन के बनते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है CHITTIN होती है, मगर उसे पढ़ते हैं हम लोग कैटीन। ओके, एंड जो फिर बैक्टीरिया सेल होती है, जो बैक्टीरिया सेल जो सेल वॉल होती है, उसकी जो सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडाइक्लोइन। ओके, फिर जो मैंने बताया सेल वॉल जो होता है एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, एंड आफ्टर देयर इज सेल मेम्ब्रेन। आई विल टेल अबाउट सम मोर अबाउट द सेल वॉल। And in cell wall, some holes are present in cell wall that give to way to came inside and outside of substances. It provide barrier, but some things that wanted to go on cell, so it provide. Okay, these narrow pores are present in cell. It is known as pits, PITS. Okay, pits बोलते हैं उसे। फिर आते हैं सेल वॉल हो गया, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब ये जो एक स्ट्रक्चर होता है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, मतलब ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, इन्वायरमेंट से। और ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? क्योंकि वो बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और ये बहुत कम ही जगह लिखा रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट से भी बना होता है। ठीक है, और जो देखिए सेल वॉल हो गए और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ये आप ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ये आपको स्कूल में मिल सकते हैं और ये बहुत सस्ते होते हैं। आप अमेज़ॉन से 2000 रुपीज़ में ले सकते हैं आराम से। मगर जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपके स्कूल में तो नहीं होंगे, आप देख नहीं पाएंगे। और मगर ये जो सेल वॉल हो गए और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप ये भी ध्यान दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और किसी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे अभी को बताया जो प्लाज्मा जो आपका ये सेल वॉल था उस पर पोर्स थे, उसको हम लोग पिट्स बोल रहे थे। अब इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे नैरो पोर्स होते हैं,
उसको मतलब बहुत सारे होते हैं, उसको मेम्ब्रेन्स, उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वो पोर्स बहुत सारे ऐसे मतलब मतलब पोर्स होते हैं, भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। पोर्स जो होते हैं, जो उसमें ऊपर की जो होती है वो मतलब हाइड्रोलिक, मतलब हाइड्रोलिक होती है, मतलब वो जो वाटर को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट वाटर को करती है। मगर जो इसकी टेल होती है वो रिपिल करती है, मतलब वाटर को रिपिल कर देती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कोई सब्सटेंस को सेल के अंदर आना हो तो इसके थ्रू आ सकता है, ठीक है। और जैसे अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन, वही जो था सेल जो भी बता रहा हूँ वही है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नैरो आर परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो बताया हूँ, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल द सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको जानते हैं सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, पार्टिकली परमिएबल एंड डिफरेंट परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज नेम बाय सो मेनी, मतलब ये परमिएबल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आने देता है, ठीक है, वांटेड जो होते हैं उसी को। फिर उसके बाद आता है दो प्रोसेस आते हैं। एक आपका आता है मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस अंदर बाहर जाने वाले हो, तो उसी में दो टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑकर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव से मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, अभी मैं बताऊंगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। और ये पैसिव है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। पैसिव वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जब एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं हुई तो प्रोसेस स्लो होगा, प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, मतलब छोटे वाले आराम से चले जाते हैं, ठीक है, ये पैसिव हो गया। और एक्टिव में आते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है। तो लो कंसंट्रेशन से हायर, तो इसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो स्पीड भी ज़्यादा, मतलब मूवमेंट ऑफ रैपिड, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है। और फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली, मतलब आराम से इसमें लार्ज वाले को, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लार्ज वाले को आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर देखो पैसिव में ही दो होते हैं, पैसिव के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। देखो जो डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न जो होता है मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। मतलब यहाँ हाई वाटर, जैसे एक रेसिन वाला एग्जांपल लेते हैं, किशमिश जिसे बोलते हैं आप लोग, किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, किशमिश को पानी के अंदर आप डालेंगे तो उसके अंदर पानी तो कम होता है, ठीक है, और उसके बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उस उधर वाटर ज़्यादा, तो मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो पानी है बाहर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है और रेसिन के अंदर बहुत कम है, तो ये जो अंदर वाला, बाहर जो इन्वायरमेंट में वाटर है वो आपके अंदर चला जाएगा और जो अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका ऑस्मोसिस, मूवमेंट इसमें था, देखिए डिफ्यूज़न में था सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का, मगर ये डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें बस सॉलिड मीन्स जो ऑस्मोसिस होता है उसमें बस आपके वाटर का मूवमेंट होता है, किसका, वाटर का बस मूवमेंट होगा। तो इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है, ये होता है ऑस्मोसिस। तो और इसका भी एक एग्जांपल लेते, वो उसमें डिफ्यूज़न में नहीं बताया था, ये एग्जांपल मतलब बहुत अच्छा ऑस्मोसिस में ही होगा, रेसिन वाला। तो जो बताया था, जैसे एक रेसिन है, किशमिश रखे तो जो वाटर होता है वो पानी के अंदर आता है, क्यों, क्योंकि ड्यू थ्रू
ऑस्मोसिस से होता है, पानी अंदर आ जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, और फिर से 3 सॉल्यूशन और होते हैं, कौन से? डाइल्यूट, कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 दिस ऑल द मैटर्स आर प्योर, आई थिंक दिस ओनली। There are 3 types: dilute solution, concentration solution and saturated solution. Means the in dilute solution solvent ज़्यादा होगा। solvent और solvent और solution क्या होता है लो बता देता हूँ। solvent जो होता है जिसमें एक तो पहली बात solvent जो होता है उसमें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और solute में क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कैसे याद करेंगे? solvent SOLVENT स्पेलिंग ज़्यादा है तो मतलब हाइयर, मतलब ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो कम है तो मतलब कम वाला ही होगा। सॉल्यूट में वो होता है जैसे चीनी है या नमक है, तो जिसमें मिलाया जाए तो ये जो लिक्विड है पानी के, तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और जो चीनी है वो सॉल्यूट, एक तो ये कम अमाउंट में है, ठीक है, इसलिए डाइल्यूट और सॉल्वेंट हो जाता है। तो इसकी डाइल्यूट हो गया, और फिर आता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें सॉल्यूट क्या होता है? ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है आपका? इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर आता है एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। जैसे कि डाइल्यूट, कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड है, सेम उसी की तरह है, आपको बता देता हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। देखो हाइपरटोनिक में क्या होता है, जैसे फिर से वो किशमिश वाला एग्जांपल लेते हैं। एक किशमिश है, हाइपर में क्या होता है, जैसे किशमिश को नहीं लेते हैं, हाँ किशमिश से ले लेते हैं। वो समझो पानी जो था वो स्वेल है, मतलब वो पहले से कंसंट्रेशन में रखा गया था, ठीक है। अब तुम लोग पानी के अंदर आके रखे, तो अब क्या होगा? अब ये बाहर जो है इन्वायरमेंट में पानी कम है, ठीक है, और अंदर रेसिन के अंदर, किशमिश के अंदर जो पानी है बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? अब इसमें से जो किशमिश के अंदर पानी है, अब वो पानी जो बाहर निकल जाएगा। पानी जो होगा किशमिश के अंदर जो अब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब हायर कंसंट्रेशन अंदर है और बाहर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और फिर आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब किशमिश है, सूखा है, और बाहर जो है पानी ज़्यादा है, तो जो पानी होंगे वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर अब आता है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सेम इक्वल, पानी अंदर भी एकदम इक्वल हो, मतलब इन्वायरमेंट में भी पानी इक्वल हो और रेसिन मतलब किशमिश के अंदर भी इक्वल हो। फिर आता है आपका प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस होता है वो ऑकर इन प्लांट सेल होता है। पहली बात ये, जैसे हम लोग अभी को पढ़ रहे थे डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सब वही। अब जैसे रेसिन में हो गया हर जगह, तो अब ऐसे ही आपका होता है व्हेन अ लिविंग सेल, डेफिनेशन पहले बताता था तब समझाता हूँ। When a living cell loses water to osmosis, there is a shrinkage or contraction of a context of the cell from the cell wall and are called plasmolysis. Okay? मतलब जो सेल वॉल है, अब देखो सेल वॉल है, अब बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होगा? मतलब वाटर जो होगा लूज़ करने लगेगा। तो लूज़ करने लगे, तो इसी प्रोसेस को, जैसे पानी अंदर है ज़्यादा है, ये प्लांट हो गया, अंदर पानी ज़्यादा है, तो अब अंदर पानी ज़्यादा है तो हाइपर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या होगा? ये पानी जो होगा वो बाहर धीरे धीरे निकलने लगेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना है। बस यही याद करो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना है तो हो जाएगा, ठीक है। और ये भी श्रिंकेज ऑफ अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, जो मैं बताया हूँ। अब आते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस को, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द मोस्ट जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है, अभी मैं बताऊँगा। डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। और मतलब जो डीएनए के एक होते हैं, डीएनए मटेरियल होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, डीएनए मटेरियल्स होते हैं, वो उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल इसको बोलते हैं।
और इसकी जो जनरली शेप होती है न्यूक्लियस की स्पेरिकल होती है या ओवल होती है, ठीक है। और जनरली जैसे हम लोग एनिमल्स हो गए हम लोग एनिमल्स ही कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू बायो, तो एक ही न्यूक्लियस होते हैं, मगर कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, कहीं भी एक्सेप्शन है। जैसे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं पैरामीशियम में पाए जाते हैं, और मतलब बहुत सारे 50, 100, 1000, लाख, करोड़, मतलब पता नहीं कितने, मगर बहुत सारे पाए जाते हैं। वो आपके पाए जाते हैं ओप्लिना होता है। ओप्लिना क्या होता है? ओप्लिना ये एक प्रोटोजोआ ही होता है, वही है। और एक में तो एक ही होता है, एक में इतने ज़्यादा होते, एक में कुछ होते ही नहीं है। वो क्या होता है? एब्सेंट न्यूक्लियस कौन से होते हैं? आपका साइफ ट्यूब होता है, ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट करता है। और एक चीज़ और होता है, देखिए अपने बॉडी में भी एक होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो होता है आपका RBC, रेड ब्लड सेल। ओके ओके। और ये हो गया। और चीज़ मैं और आपको भी कुछ बता देता हूँ। और हाँ, और जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर्ड का होता है। डबल लेयर्ड हो गया न्यूक्लियस, हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सिंगल ही होता है शायद आपका न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन्स होता है, ये याद रख के रहिएगा। और इसमें भी हाँ, एक इसमें भी बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, मतलब जैसे हम लोग ने पढ़े थे उसमें, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। हम लोग ने सेल वॉल में पढ़े थे पोर्स, और इसमें भी आता है न्यूक्लियस में भी पोर्स। तो इस पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पोर्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे होल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं। और फिर आता है क्रोमोसोम्स, मतलब इसी के अंदर क्रोमोसोम्स भी बनते हैं। क्रोमोसोम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आप लोग ऐसे नहीं देख सकते कि जैसे कोई माइक्रोस्कोप लिए देख लें, मगर ऐसे नहीं देखेंगे। जब सेल डिवाइड होने वाले होंगे तभी आप इसको क्रोमोसोम को देख पाएंगे। और जो सेल होता है, सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट। जैसे मैंने साइटोसोल बताया था, वैसे ही साइटोप्लाज्म ऐसे ये भी होता है, ये मगर न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस जो होता है, उसी के अंदर एक, जैसे न्यूक्लियस होता है ऑर्गन्स जैसे हम लोग के बॉडी में होते हैं, तो ऐसे सेल के अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इट इज़, पहली बात तो ये ध्यान दो, ये कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। लेस राउंड सेल फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है, कवरिंग ऑफ द सेल। और इसी को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइजोसोम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइजोसोम्स बोलते हैं। और ये हो गया क्रोमोसोम कंटेन। और जो मैं क्रोमोसोम बता रहा था, ये जो होते हैं कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेज ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन टू द फॉर्म ऑफ DNA। अभी मैं बताता हूँ। और पहली बात ये तुम लोग कहीं लिख लो, DNA का और RNA का फुल फॉर्म। देखो DNA का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और DNA हो गया। और फिर आता है RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक, हाँ RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम हो गया, और ये सब हो गया। और जीन क्या होता है अभी सब मैं बता देता हूँ, एक ऐसे बताता हूँ। फंक्शन सेगमेंट ऑफ DNA होता है, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं, इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। और एक बार जितना पढ़े उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। DNA जो मैं बार बार बोल रहा था, DNA क्या होता है? अ बायोलॉजिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अ बायोलॉजिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस that contain hereditary information of an organism and it inherited from parents to their offspring। मतलब DNA जो होता है वो जैसे आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको, क्योंकि देखो जैसे आपके कभी कहीं हो सकता है आपकी आंखें मम्मी से मैच करते हो या पापा से मैच करते हो, या नाक, स्किन, हेयर कलर, मतलब ये सब जो होते हैं ये DNA के थ्रू होते हैं, ठीक है। DNA के अंदर जो जीन, DNA के अंदर DNA आप देखे होंगे ऐसे ऐसे करके होता है, मूवी में आप बहुत देखे होंगे। तो जो जीन में जो स्पेस जो बचता है, जो ऐसे करके होता है,
ऐसे करके डीएनए जो जो बीच में स्पेस ये बनता है, इसी में जीन लोकेट होते हैं और इसी में आपकी कलर कैसा होगा, बॉडी का शेप कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, आई कैसे होगा, आईब्रो कैसे होंगे, टीथ कैसे होंगे, नोज कैसे, मतलब सारे इनहेरिटेट करता है आपके पेरेंट्स से, फिर आपको ऑफ स्प्रिंग में आपको दे देता है। ठीक है, फिर आप इसके बाद आता है क्रोमेटिन आता है। क्रोमेटिन क्या होता है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रूआउट न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, मगर ये इधर उधर ऐसे फैला होता है, बहुत मतलब एक स्कैटर्ड होता है, पूरा फैला होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये भी होता है। फिर एक आता है क्रोमोसोम्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इट फॉर्म डीएनए, यही डीएनए फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब फॉर्म नहीं करता है, जो डीएनए होते हैं वो क्रोमोसोम को बनाते हैं। ठीक है, गलती हो गई थी, जो डीएनए होते हैं वो क्रोमोसोम को ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके रॉड टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे करके बना देते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ऐसे तो आप देख नहीं सकते सेल से, माइक्रोस्कोप से, आपको उसके लिए एक जब सेल वॉल जब सेल होगा, जब सेल डिस्पर्स होगा, मतलब सेल जब डिवीज़न होगा तभी आप देख सकते हैं। जीन बताई दिए। ठीक, अब फिर एक सेल होते हैं दो टाइप से, एक बार और बांटे जाते हैं, एक तो नंबर के अकॉर्डिंग और एक ऐसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका प्रोक्रियोटिक सेल, एक होता है यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल और एक यूक्रियोटिक सेल। जो प्रोक्रियोटिक सेल होता है, प्रोक्रियोटिक प्रो होता है और यू होता है, तो यूक्रियोटिक में हम लोग आते हैं। ठीक है, यूक्रियोटिक में हम लोग आते हैं और प्रोक्रियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं, ये सब। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो प्रोक्रियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव प्रो, और क्रियोटिक मतलब होता है क्रेयॉन। क्रेयॉन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो प्रोक्रियोटिक के मतलब। और देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारा न्यूक्लियस तो पहली बात एब्सेंट होता है, ब्रेन ऑफ द सेल और सेंटर ऑफ द सेल जो बोल रहे थे, न्यूक्लियस इसमें भाई होता ही नहीं है। फिर यूक्रियोटिक में देखो, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में एक साथ बता दो, इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, होता है। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ठीक है, ऑर्गन देखो जैसे हम लोग में ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑर्गन्स जो होते हैं किडनी, लीवर, हार्ट, ये तो ऑर्गन्स होते हैं, मगर जब सेल के होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनीज। ऑर्गेनीज, ORGANELES, ऑर्गेनीज बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो इसमें होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। ठीक है, और इसके प्रोक्रियोटिक में आपके हो गए जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे आपके प्रोक्रियोटिक में होते हैं, और यूक्रियोटिक में आपके इसमें वो आपके फंगी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल, सारी यूक्रियोटिक में आते हैं। और एक चीज़ आप नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा, सिंगल सेल, डबल सेल, मेम्ब्रेन सेल बॉन्ड जो होते हैं, और जिसमें मतलब मेम्ब्रेन होता ही है, तो आपका देखिए सिंगल जिसमें एक ही होता है बॉडी, ये स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनीज है, ये जो मैं बताऊंगा ये ऑर्गेनीज होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। वैक्यूल्स होता है, ठीक है, ये एक ही का होता है, अभी मैं सारा बताऊंगा। वैक्यूल्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, सारे सिंगल होते हैं, सिंगल कवर्ड होते हैं। ठीक है, फिर गोल्जी ऑपरेटस हो गया, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ER बोलते हैं। ठीक है, और फिर आता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड में जैसे जो डबल लेयर से बॉन्ड हो। ठीक है, क्या क्या आपके N हो गए न्यूक्लियस, M से माइटोकॉन्ड्रिया, P से प्लास्टिड। ठीक है, और ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके होते ही नहीं, मतलब सराउंडेड बाई होते ही नहीं। क्या 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 आपके, एक तो पहले हम लोग वो न्यूक्लियाइड पढ़े थे उसमें, सॉरी न्यूक्लियाइड बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें नहीं होता है, और राइबोसोम्स में नहीं होता है, और सेंट्रलीजोम्स में नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, न्यूक्लियस जब जैसे प्रोक्रियोटिक हो गया और यूक्रियोटिक में हो गया, प्रोक्रियोटिक नहीं हम लोग उसमें चलते हैं आप जैसे आपका एक दो टाइप के तो होते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। एक ऐसे एक न्यूक्लियस होता है जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है,
न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियाइड होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है इसमें आपका जैसे ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसमें बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर इसमें एक ही बस होता है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होते हैं इसमें, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, यही थे इसके बारे में और आपको समझ आ गया। और ये ऑल अबाउट सेल थे। अब जो सेल ऑर्गेनीज होते हैं अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो। थैंक यू।